نیوز انسائیڈر کا خاص پروگرام اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی اور۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی نے مستقبل میں انتقامی کارروائیوں کا انتباہ کیا۔ بولے ٹرمپ کی جانب سے امریکی حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ہم خمینی کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی بھی آپریشنل موقع نہیں ملا، اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس کا بیان۔ ایران کی جانب سے جوہری حملوں کے بعد امریکی مذاکرات کو مسترد کر دیا گیا۔ قانون سازوں نے اقوام متحدہ کی نگرانی کو معطل کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا عزم کیا۔ کشمیری ڈاکٹر کو داڑھی رکھنے پر تمل ناڈو میں سپر اسپیشلٹی نشست چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ JKSA کی جانب سے وزیر اعلیٰ اسٹالن کو مداخلت کے لیے خط لکھا گیا۔ محرم کے جلوس کے لیے سری نگر میں حکام کی جانب سے ٹریفک ڈائیورژن پلان کو جاری کیا گیا۔ RSS کا نقاب اب اتر چکا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے سیکولر اور سوشلسٹ الفاظ پر اٹھ رہے فساد پر کہا گیا۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ڈاکٹر کرن سنگھ سے ملاقات کی گئی اور جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ خصوصی عدالت کی جانب سے پہلگام دہشت گردی کے 2 ملزمین کو NIA کا 10 دن کا ریمانڈ منظور کیا گیا۔ جموں و کشمیر کو بہترین سیاحتی مقام کے طور پر بحال کرنا ہمارا اجتماعی فرض ہے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان۔ جموں و کشمیر کے بارامولہ میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چلتے 3 افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رامبن کی جانب سے عوامی تحفظ کے لیے دریائے چناب اور نالے کے قریب تیراکی، نہانے، مچھلیاں پکڑنے اور گھومنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع بانڈی پورہ کے چوپان محلہ خیار میں مقامی لوگوں کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پرانی راجکول سے مکان و باغات متاثر ہونے سے شدید غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رامبن کی جانب سے ایک میٹنگ کی صدارت کر اہم محکموں کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا، ساتھ ہی عوامی شکایات کے بروقت ازالے پر بھی زور دیا گیا۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں CRPF کی 3 بٹالین کی جانب سے کیتسان گاؤں میں 2 مفت طبی کیمپوں کا انعقاد کیا گیا۔ کلگام سے تعلق رکھنے والی ایک 10ویں جماعت پاس آؤٹ بچی باوقار انسپائر مانک ایوارڈز کے لیے نامزد ہونے کے ساتھ ہی قومی شناخت بھی حاصل کر گئی۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے 2 بڑے چہروں کی جانب سے غلام نبی آزاد کو بیچ راستے چھوڑ کر کانگریس کا ہاتھ تھاما گیا۔ پارٹی لیڈران کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی 2 جولائی سے جائیں گے اپنے 5 ممالک کے دورے پر۔ وزارت خارجہ کے مطابق 8 دنوں کا یہ دورہ ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر خالیہ حملوں کے اثرات کو مبالغہ آرائی کی ہے، جبکہ مزید جوابی کارروائی کا انتباہ بھی دیا گیا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن خطاب میں آیت اللہ علی خمینی کی جانب سے مبینہ طور پر اسرائیلی فضائی مہم کے دوران روپوش ہونے کے بعد سے 1 ہفتے سے زیادہ عرصے میں اپنی پہلی پیشی کی گئی، جس میں ان کے کئی جنرلز کی ہلاکت ہوئی تھی۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں ایران کی فتح کو بھی سراہتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد تل ابیب کی جاری حد تقریباً منہدم ہو چکی ہے۔ واضح رہے تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں امریکہ ایسی کوئی بھی جرات کرتا ہے تو وہ انتقامی کارروائیوں کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے امریکی حملوں کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا ملک حالیہ 12 روزہ تنازع کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے چینل 13 سے بات کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایسی کارروائی کرنے کے لیے امریکی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے قبل میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ واشنگٹن کی جانب سے اس قتل کو ویٹو کر دیا گیا تھا۔ کاٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم خمینی کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن آپریشنل موقع ہمیں ایسا کوئی بھی نہیں ملا۔
वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्ड्स ने दावा किया है कि खमेनी इस खतरे से आगाह थे, इसी के चलते वो गहरी रोपोश हो गए थे और उन कमांडर से राब्ता भी मुनक़ता कर दिया था जिन्होंने इसराइली हमलों की इब्तिदाई लहर में हलाक होने वाले इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर के रहनुमाओं की जगह ली थी। ईरान ने अमेरिका के साथ मुलाकात के मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से सरकारी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की बराह रास्त नफी करते हैं कि मुज़ाकरात अगले हफ्ते तय पाए गए हैं। इराक्ची की जानिब से कहा गया कि तेहरान अभी भी उस बात का जायजा ले रहा है कि आया वाशिंगटन के साथ नए सिरे से मुज़ाकरात में शामिल होना मुल्क की मफादात को पूरा करता है या नहीं। उन्होंने याद दिलाया है कि मुज़ाकरात के पिछले 5 दौर इसराइल और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद से ही मुनक़ता हो गए थे, जबकि वाशिंगटन और यरूशलेम का यह कहना था कि हमलों का मकसद ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारियों से रोकना था। तेहरान का असरार है कि उसका प्रोग्राम शहरी इस्तेमाल के लिए था। ताहम तेहरान की 60% तक यूरेनियम की अफजोदगी को वसे पैमाने पर सिर्फ हथियारों के लिए ही मौजू समझा जाता है। वहीं यरूशलेम का ये कहना है कि उसके पास ये इंटेलिजेंस है कि तेहरान जोहरी बम बनाने के लिए ही सरगर्म अमल है। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन को खत लिखकर वादी कश्मीर के एक नौजवान मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ मुबैना मजहबी इम्तियाज के एक परेशान कुन मामले में उनकी फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की गई है। डॉक्टर जबीर अहमद को कवाई मेडिकल सेंटर एंड हस्पताल कोयम्बतूर में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के जरिए मुनक्कद किए गए नीट SS दूसरे काउंसलिंग राउंड के जरिए डॉक्टर NB यानी नेफ्रोलॉजी के निशस्त अलॉट की गई थी। मुबैना तौर पर उन्हें दाढ़ी मुंडवाने को भी कहा गया। अपने खत में एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि दाखिले की रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए अस्पताल में रिपोर्ट करने पर डॉक्टर जबीर से मुबैना तौर पर एक पॉलिसी दस्तावेज पर दस्तखत करने को कहा गया, जिसमें दाढ़ी रखने पर पाबंदी आयद की गई थी। ये शर्त एक बाअमल मुसलमान के तौर पर उनकी मजहबी जिम्मेदारियों से मुतसादिम है। अपनी दाढ़ी को सर्जिकल मास्क से ढांपने की पेशकश करने और हिफ्जान सेहत के तमाम प्रोटोकॉल्स और इदारा जाती लिबास के बाज़ाब्तों की तामीर करने पर भी राजी होने के बावजूद भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर उन्हें रिहाइश देने से इनकार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर की जानिब से कहा गया है कि अस्पताल अपने इस मुतालबे में गैर वाज़े है कि डॉक्टर जबीर दाखिला लेने के लिए अपनी दाढ़ी मुंडवाएं या तराशें। एसोसिएशन की जानिब से अपने खत में यह कहा गया है कि उसे वाज़े तौर पर यह कहा गया कि वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तालीम हासिल करने के लिए अपनी दाढ़ी मुंडवा कराएं। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुमा के रोज ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 30 जून से 21 जुलाई 2025 तक तयशुदा मुहर्रम के जुलूसों के दौरान ही गाड़ियों की हमवार नकलो हरकत के लिए एक तफसीली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये एडवाइजरी, जिसका मकसद मुसाफिरों और सोगवारों दोनों को ही सहूलियात फराहम करना है, 27 जून से शुरू होने वाले मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने के दौरान ही निकाले जाने वाले मजहबी जुलूसों के पेश नजर है। हुकाम के मुताबिक कई अहम रास्तों पर मखसूस तारीखों और अवकात में ट्रैफिक का रुख तब्दील हो जाएगा, खासतौर पर रैनावाड़ी, हजरत बल रोड, जारीबल हॉल और फिर लाल बाजार जैसे इलाकों में। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से आईन की तमहीद यानी कि प्रीएम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज पर तनाज़े पर जुमा को ही गौर किया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर हमला किया गया है, जो कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के नजरियाती सरपरस्त है। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि आरएसएस का नकाब फिर उतर गया। उन्होंने कहा कि आईन उन्हें नाराज करता है क्योंकि ये मसावात, सेकुलरिज्म और इंसाफ की बात करता है। आरएसएस और बीजेपी को आईन नहीं चाहिए, वो मनुस्मृति चाहती हैं। उनका मकसद पासमानदा और गरीबों से उनके हकूक को छीनना और उन्हें दोबारा गुलाम बनाना है। उनसे आईन जैसा ताकतवर हथियार छीनना उनका असल एजेंडा है। राहुल गांधी की जानिब से आगे ये भी कहा गया कि आरएसएस को ये ख्वाब देखना छोड़ देने चाहिए, हम उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर के करन महल में एक नामवर रहनुमा और रियासत के साबिक सदर डॉक्टर करण सिंह से मुलाकात की गई। मीटिंग में युवराज विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे थे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सियासी और तरक्याती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से डॉक्टर करण सिंह को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की तमाम खित्तों में अमन, इस्तेकाम और जामा तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह भी किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक खसूसी अदालत की जानिब से उन 2 मुलजमीन का 10 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया गया है, जिन्हें अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पीछे पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल एक मकामी अदालत की जानिब से पीर को ही NIA को दोनों मुलजमीन का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया था, जिसकी मियाद जुम्मा को खत्म हो रही थी।
वहीं हुकाम की जानिब से बताया गया है कि NIA ने दोनों को ही NIA की खसूसी अदालत के सामने पेश किया, जिसके बाद ही उन्हें मजीद 10 दिन का रिमांड भी मंजूर हो गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की हैसियत को मुल्क के मारूफ सियाती मकाम के तौर पर बहाल करना हुकूमत और सियाहत के स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका जिम्मेदारी है। शहर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में FICC और जम्मू और कश्मीर के महकमा सियाहत के ज़ेरे एहतमाम मुश्तरका तौर पर मुनक्कदा जम्मू और कश्मीर टूरिज्म रिवाइवल डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सियाहत को फ़रोग देने और मेहमानों की मजमूई तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों पर भी जोर दिया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि ये यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान के मुमताज़ सियाहती मकाम के तौर पर अपना मुकाम दोबारा हासिल कर ले और उसे बरकरार भी रखे। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में 3 अफराद के खिलाफ सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी के सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस हो रहे थे। पुलिस की जानिब से बयान में कहा गया है। पुलिस के एक तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि तखरीबी और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में सोपोर में पुलिस ने 3 अफराद को PSA के तहत ही UT की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों में मुसलसल मुलविस होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत पहले मुतअद्दिद FIR दर्ज किए जाने और बार बार रोकथाम की कार्रवाइयों का सामना करने के बावजूद तीनों ने सरहद पार दहशतगर्दों से राब्ता बरकरार रखने के लिए खुफिया VOIP प्लेटफॉर्म और VPN नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम जारी रखा है। तर्जुमान की जानिब से बयान में मजीद कहा गया कि वो खुफिया तौर पर मकामी नौजवानों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की तरगीब देने में भी मुलविस थे। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि मुसलसल निगरानी और डोजियर की तैयारी के बाद ही मजाज अथॉरिटी की तरफ से हिरासती अहकाम जारी किए गए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लेकर ही कोटबरवाल जेल में रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट रामबन मोहम्मद इलियास खान की जानिब से BNSS की दफ़ा 163 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक हुक्म जारी किया गया है, जिसमें दरियाई चनाब और दीगर आबी ज़खायर के करीब तैराकी, नहाने, मछलियां पकड़ने और घूमने फिरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि हादसात को रोका जा सके और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि ये देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में लोग खासतौर पर नौजवान और बच्चे भी अक्सर दरियाई चनाब के किनारे और जिला रामबन के मुख्तलिफ दीगर नालों के करीब ही गैर ज़रूरी तौर पर नहाने, माहीगीरी करने और फिर घूमने फिरने में मशगूल रहते हैं, जो कि पानी की सतह में अचानक इजाफे, फिसलने वाले इलाकों और शदीद ज़ेरीन धारों की वजह से इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया है कि इंतजामिया शहरियों से ताउन करने और दरिया के किनारों और नालों से दूर रहने की अपील करती है, खासतौर पर मानसून के मौसम में अपनी जिंदगियों और दूसरों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए। जिला बांडीपुरा के चौपान मोहल्ला खयार, जो कि 35 घरों पर मुश्तमल एक गंजान आबादी है, उसके मकीनों की जानिब से पुरानी रैशकोल की अदम मरम्मत पर जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। मकामी अफराद की जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि गुज़िश्ता 3 सालों से बार बार दरख्वास्तों के बावजूद भी कॉल की मरम्मत नहीं की जा रही। मुजाहिरीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि चंद रोज कबल ही महकमा आबपाशी का एक ठेकेदार यहाँ पर आया, जिसने ज़री ज़मीनों को पानी की फराहमी के लिए कॉल में आर्जी तौर पर मिट्टी भर दी थी। उसके बाद गुज़िश्ता शब शदीद बारिश की वजह से पानी का बहाव बढ़ गया, जिससे ये आर्जी ढीले भी नमा बंद जो कि था वो भी उखड़कर बाहर निकल गया। इससे रिहायशी मकानात, बागात और दीगर ज़ेरे तामीर मकान जो को बेहद शदीद नुकसान पहुंचा है। वहीं जब इस मामले पर महकमा आबपाशी से हमने राब्ता करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि कॉल को मरम्मत के मंसूबे में शामिल कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू भी कर दिया जाएगा। मुतासरीन की जानिब से जिला इंतजामिया से फौरी इकदामात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा भी किया गया है। DC साहब अपील कर गई 3 वरी लगातार सैलाब। DC साहब दिवान इरिगेशन पे लिखित गो सा इरिगेशन वाल वन पोस कहीं गए ब्लाकस तेज ब्लाकन कोर इनकार दोपन हसा करो आज या पगह तम खाली दोख दिवान डिपार्टमेंट नवा कहीं ओतर कोर MLA साहब दोप त्रो फिलहाल 5-6 दोन खतर जमींदारन आब लगो ठेल टेम्परी हमें गई 3 दो ठेकेदारस ठेल लग तुम वो ठेल हालात क्या रूद रात पे रूद सत बारिश सत आय कल मत तुम वो ठेल कत वह गोक आब वह कम चला तम कर पूर कम कह सह वन बह बेमा ये ठेल कस थनस लगित वो तो द्रा दोपन मे नेर पान बिल तुम वो हालात क्या सन वनकस यह अकिस गरस निमित पुलान वाल यह गमस यह और बाग गजा योर वो तुम बन क्या बागन अपील DC साहबस मेहरबानी इरिगेशन वाले नचान वन सा यह दिल कस डिपार्टमेंटस गो हतो फाना गो वन सा यह अत क्या करो ये गाम चारा कर मेहरबानी अपील
DC صاحب अपील करान MLA صاحب अपील करान मेहरबानी क्या करू रमजान गनाई तैयार रोजन मसला क्या यथ गामस आब मिलान कहें वो कल आब मगर ये 3 वरी वात डैमेज गमतिस गई DC साहबस गई ADD तो मगर सो गौर करान कहें वह कत बन मोदी साहब नंबर मोदी साहबस करो अपील दपो जनाब तु कर गरीबन हूँ चार ओल्डर रेश पे सोन गुजारिश ये गोस यून फिलहाल ये कम ज्यादा कह पत हरदी विज अगर ये सीमेंटस मज कम कर यह कोलस सिद आब वो गाम तुलन वत योर मकान खतरे गामस खतरे वारियन खतरे कुल रोद कुन काफ रोद कुन नुकसान गुम बिचारस गरीब इंसान क्या करो मगर समय अपील मानान कहें ना DC साहब डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान की जानिब से कलीदी महकमों बशमूल जल शक्ति JPDCL म्यूनसिपल कमेटी के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक जामा जायजा मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें अवाम को बरोकत और मियारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग में CPO रामबन डॉक्टर शाकिब अहमद राथर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति JPDCL के AEEs, CEO म्यूनसिपल कमेटी रामबन, EO म्यूनसिपल कमेटी बानीहाल और RDSS के नुमाइंदों की जानिब से शिरकत की गई थी। हाल सैलाब से पैदा होने वाले पीने के पानी के मसाइल पर बात करते हुए खासतौर पर मौसम गर्मा के दौरान DC की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति को पानी की फराहमी से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल करने की हिदायत दी गई। उन्होंने महकमे को साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए पानी जखीरा करने के टैंकों को भी बाकायदा से सफाई करने की हिदायत दी है। दूर दराज और पासमानदा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की 3री बटालियन की जानिब से जुमा के रोज ही बांडीपुरा जिले के कीचसान गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ही 2 मुफ्त तिब्बी कैंपों का इनकाद किया गया। इन कैंपों में 475 से जायद अफराद की जानिब से इस्तेफादा किया गया था, जिनमें अपर कीचतान के 249 और डक्की मोहल्ला कीचतान के 226 बाशिंदे शामिल थे। इसके अलावा दीगर गरीब और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की जानिब से भी कैंप में फ़ायदा उठाया गया। कैंप में माजूरों को मुफ्त तिब्बी मशवरा और ज़रूरी अद्वियात फराहम की गई। कैंप का इफ्तिताह CRPF के 3री बटालियन के 2AC मनोरंजन कुमार की जानिब से किया गया, जिन्होंने इस इकदाम के पस मंजर में मौजूदा मकसद पर रोशनी डालते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इन मुफ्त कैंपों का मकसद है कि दूर इफ्तिदा इलाकों में रहने वाले अफराद को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मैसर की जाए। ऐसे मज़ीद कैंप बांडीपुरा के दूसरे पासमानदा इलाकों में भी मुनक्कद किए जाएंगे। अधिकारी हैं CRPF के और जो गृह मंत्रालय का सूचना है कि हमारा जुड़ाव गांव के साथ हो। वो गांव जो बहुत ही रिमोट इलाके में है, जहाँ पे विकास उतना पहुँच नहीं पाया है, जहाँ पे बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसी जगह पे मेडिकल कैंप्स और तमाम तरह की जो भी सरकारी स्कीम्स आती हैं, जो CRPF को जिम्मेदारी दी जाती है, उस स्कीम से उन गांव वासियों को उसका लाभ पहुंचाए। उसी सिलसिले में ये मेडिकल कैंप यहाँ आयोजन किया गया है। पिछला कैंप जैसे आपको पता है कि हमने छोटी बुल्ला सुमलर इलाके में किया था। इस बार हमने केटसन चुना क्योंकि केटसन की दूरी बांदीपुरा से बहुत ज़्यादा है और गाये बगाए यहाँ पे इस ढंग के कैंप होते हैं। तो हमने सोचा कि जो यहाँ पे पहाड़ में रहने वाले लोग हैं उनको इसका फ़ायदा पहुँचे। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे जो लोग पहुँच नहीं पाते बांदीपुरा शहर तक, उनको इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा हो और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जाए। आप जैसे कि पता है कि आपको ये पहले 8 मेडिकल कैंप हमने कर दिया है, तो उस सिलसिले में ये अगला मेडिकल कैंप हमने आयोजन किया है और आने वाले टाइम में कोशिश हमारी की और मतलब 15 मेडिकल कैंप तक करने की, और हम उन्हीं इलाकों में जाएंगे जिन इलाकों में नॉर्मली मुश्किल होती है लोगों को वहाँ से शहर को जाने को और इलाज कराने को। ये बात साबित करते हुए कि जज्बे की कोई भी सरहद नहीं होती है, चाइल्ड्स कार्विंग पब्लिक स्कूल आखरान से 10वीं जमात पास आउट होने वाली मिसबा खान की जानिब से बावकार इंस्पायर मानक अवार्ड 2025-26 के लिए नामजद जम्मू और कश्मीर के 9 तलबा में जगह हासिल करके कौमी शनाख्त हासिल कर ली गई है। जिला कुलगाम में अपने आबाई शहर आखरान में सहाफ़ियों से बात करते हुए मिसबा की जानिब से एक कामयाब कारोबारी खातून बनने के अपने ख्वाब का इजहार किया गया। उसके इख्तराई जज्बे और अज़म ने पहले ही एक उम्मीद अफजा छलांग लगा ली है जब उसने कौमी सतह पर 70 शराकाई के दरमियान मुकाबला किया है।
जम्मू और कश्मीर के दो साबका वुज़रा गुलाम नबी आज़ाद की ज़ेरे क़ियादत डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP के साथ मुख्तसर मुद्दत के बाद जुमा के रोज़ ही कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए। ताज मोइनुद्दीन और गुलाम मोहम्मद सरूरी की जानिब से श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में दोबारा कांग्रेस में शामूलियत इख्तियार कर ली। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर और लद्दाख नासिर हुसैन, यूनियन टेरिटरी पार्टी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा और दीगर सीनियर लीडरान की जानिब से उनका पार्टी में वापसी का खैर मकदम किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी असेंबली हलके से ताल्लुक रखने वाले साबका रकुन असेंबली ताज मोइनुद्दीन की जानिब से अगस्त 2022 में DPAP में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी गई थी, जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ा था। बाद में अगस्त 2024 में ताज मोइनुद्दीन की जानिब से DPAP को भी छोड़ दिया गया और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात में वो नाकाम रहे। दूसरी तरफ सरूरी, जिन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और DPAP में शामूलियत इख्तियार की थी, वो भी आज़ाद की पार्टी को छोड़ चुके थे जब उन्होंने इंद्रवाल से इलेक्शन लड़ने का मैंडेट उन्हें नहीं दिया था। हालांकि सरूरी भी इस निशस्त से इंडिपेंडेंट बतौर उतरे थे, लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राज़ील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 2 जुलाई से शुरू होने वाले 5 ममालिक के दौरे का आगाज़ करेंगे और ग्लोबल साउथ के कई अहम ममालिक के साथ ही हिंदुस्तान के ताल्लुकात को भी वसअत देंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ब्राज़ील के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 रोज़ा दौरे के दौरान गाना, टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नमीबिया का दौरा करने वाले हैं। दौरे के पहले मरहले में ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 से 3 जुलाई तक गाना का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।